Origin, next question. To flee or not to flee when at gunpoint? Can you outrun a bullet? No. Next question. No, I'm just joking. Greetings, good sir. I never imagined that I would be one day writing an email to you, but this incident has made me compelled to do so. I know how much you hate haphazardly put emails, so I'll do my best to keep this one organized and easy to follow. Thank you for consideration. Furthermore, I'd appreciate if by any chance you could read this to your audience, as this is meant to be a part of story slash part public service message. Context. I'm 21 living in KPK region of Pakistan. I also have a friend whom I would hesitate to call the love of my life simply to avoid you scolding me right here from the get go, but it is what it is. It's okay. Whatever keeps you happy. Me and my friend both study in one of the top medical colleges in Pakistan, albeit different ones. And because of our different colleges, we have been living in different cities for the past 1 year. Now, I must confess that since 2021, I've been a staunch listener of your Ask series to the point that I was quite influenced by everything that you said, which turned out to be for the best as I became more career oriented and made me and my friend decide to cut off contact with each other until we get into our desired colleges. Okay. This last point is crucial to the story that I'm about to share, as it highlights the fact that both of us were extremely excited to meet each other in person this time around. The incident. It was midday around 1 p.m. I drove to pick my friend up. We had planned a little picnic together at the nearby hills. The spot we were heading to was a favorite among my family, as not only was it peaceful and quiet there, but it also had a view of overlooking the entire city, very calming indeed. As we were nearing that spot on the hills, I saw two suspicious men with the bike standing beside the road. I jokingly thought, imagine if they are scoping us out as potential targets. Little did I know I was right. I just didn't want to believe it. Anyhow, we drove up to our spot. As we were getting out of the car, the same two men drove behind us up to our car and drove back the way they came. I told myself maybe they also wanted a scenic view, but just left to give us some privacy. After that, our mood was intensifying. We decided to proceed with things back in the car. After 10 minutes of awkward chatter, hormones got the better of us, and the next thing we know, we both were in the back seat doing what couples our age do, hugging and kissing and all that jazz. All of a sudden, my friend spotted three people coming towards us with our privacy disturbed. We decided to just drive away now. Of course, as soon as I started the engine, one of the men came over to my window and pulled out a pistol and cocked it. As soon as I heard the pistol cock, I realized that I had messed up. At that point, with the gun pointed at me, my entire life flashed before my eyes. All those dreadful feelings of unresolved trauma afflicted from school and general childhood came running back. I was left with the ultimate dilemma: do I simply surrender or risk potential death and drive away somehow? I knew that surrendering myself would not only make me lose my car and other possessions, but also my friend's dignity. I had to make a split second decision, and as erratic as it sounds, my inner subconscious decided that I would rather risk dying than to risk losing her dignity to these wolves. As my friend started screaming immensely, it startled the robbers. This gave me a second to escape. I immediately hit the gas pedal, with one of the robbers hitting the bumper so violently as it would cause me to stop the car. Nevertheless, I don't recall I've ever driven a car this recklessly before as I did at this moment. In the end, I got her safely back home and I returned to my college just in time for the class, pretending as if nothing happened, while in reality, in my mind, chaos ensued. The cheerful and smiling face now turned weary and emaciated. Since then, I haven't spoken to my family about it, but I got my lessons. We both are now we both have made we both have now made it to a point to not meet till we make things official. At present, I think I have PTSD from the incident. Whenever I'm out on foot on any road, I feel anxious, and every random dude on a bike appears a robber to me. If this prolongs, I'll consult my college psychiatrist about it. Also, I spoke to the local SHO about this incident. If you could guide me on how to proceed with everything now, that would be great. Also, even though I would deserve every bit of your scolding, please don't go too hard on me, since I idolize you a bit too much.
And believe me, I've learned my lesson. Thank you so much for reading this. Hope you have a fulfilling life. Alright, so ये एक बॉय हैं, KPK से ताल्लुक़ है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एंड ही हैज़ अ फ्रेंड जिनके साथ मतलब जो पढ़ रहे हैं, एंड देन दे डिसाइड टू मीट, और ये किसी हिल पे गए, सीनिक हिल पे, एंड ऑफ कोर्स जहाँ वो कहते हैं ना, जब लड़का और लड़की मिलते हैं अकेले तो तीसरा बंदा शैतान होता है। तो इनको फीलिंग आई कुछ लोगों को देख के कि यार ये इन्होंने हमें स्पॉट किया है, और वो पूरा माइंड बना के गए इनको देख के कि अच्छा गाड़ी यहाँ रुकी, और फिर वो शायद और बंदे लेकर आए, एंड देन फिर जो आपने सुना कि वो पिस्टल निकाल ली थी। अब देखिए, रॉबरी जो होती है ना, रॉबरी एक चीज़ होती है, लेकिन जो इस तरह के इलाकों में, जैसे फॉर एग्जांपल कराची में भी कुछ स्पॉट्स किसी ज़माने में बड़े मशहूर थे जी, वहाँ पे लोग मेकआउट करने जाते थे, तो वहाँ पे ना सिर्फ छीनना नहीं होता। देखो, वो चीज़ ऐसी होती है कि उस पर बंदा ना कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि क्लियरली हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ होंगे भी तो कहते हैं निकाहनामा दिखाओ, और हस्बैंड वाइफ है तो उनका क्या काम इस अननोन टेरिटरी में जाने का। तो मकसद ये होता है कि जी ऐसी सिचुएशन में जब आप लड़का लड़की को पकड़ लो, स्पेशली ना कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जिसमें अगर कपड़े भी ना पहने हो, तो फिर वो वीडियो भी बना लेते हैं, एंड देन फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं ज़िंदगी भर के लिए, एंड इट नेवर गोज़ वेल। फिर आप किसी को बता भी नहीं सकते, और फिर वो आपसे पैसा भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, जितना वो आपसे निकलवा सकते हैं। इन सम केसेस ऐसा होता है कि अगर उनको अंदाज़ा हो जाए ना कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आपके ATM कार्ड भी ले जाते हैं, वो कहते हैं इधर ही बैठो, मतलब एक बंदा जाता है, वो आपका पिन कोड से जितनी भी आपकी लिमिट होती है निकाल के ले आता है, या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, वट एवर। सो अब ये एक बड़ा, देखिए वो ही ना, हमेशा से किसी ने कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मसला जो है ना, पॉलिटिकल मेडलिंग, टेररिज्म या इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जगह है। लोगों के पास जगह नहीं है, जगह हो तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लें, और फिर दूसरी चीज़ों पे, चूँकि हमें करने को नहीं मिलता, हमारे जहन में हर चीज़ यही होती है, इसी वजह से चाहे वो औरत हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो, जो भी हो, कोई बचा हुआ नहीं है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। अब लोग बोलेंगे तो आप क्या चाह रहे हैं खुल जाए। अब इसमें भाई हम क्या ही बोल सकते हैं। डेजिग्नेटेड एरियाज़ होते हैं, दुनिया भर के शहरों में होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि एक सर्टन क्लास का बंदा जो है, जो नहीं अफोर्ड कर पाता, वो जाके मुंह काला करे, जो करना है उधर ही करे, वो अपना गंद शहर में ना लेकर आए। तो जब तक ये होता था यहाँ पे, तो चीज़ें एक इलाके तक कंटेन थी। फिर जब उन पे क्रैकडाउन हुआ, तो वो रातों रात जो अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है, तो अब उसने डिसाइड थोड़ी किया कि अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाती हूँ, वो तो वही रहेगी। वो सारा गंद आ गया अब शहरों के अंदर। अब आप चाहे गुलशन में रहते हो, अब आप डिफेंस में रहते हो, देयर आर स्ट्रीट्स जहाँ पे रोज़ाना एक्शन हो रहा होता है। आई मीन लाइक यू सी वेमेन एंड ट्रांसजेंडर स्टैंडिंग। मैं अब नाम नहीं लूँगा वरना बॉयज़ बाइक लेकर रात को पहुँच जाएंगे। इट्स बिकम सो रैम्पेंट। जौहर की आप देख लें, अपार्टमेंट्स जो हैं इन चीज़ों से भरे हुए हैं। लोग क्या करते हैं, रहने जाते हैं, किराए का घर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, फिर वो इन लोगों से आबाद हो जाना शुरू होता है, फिर ज़ाहिर है उस अपार्टमेंट की वैल्यू भी गिरती है। देन नोबडी लाइक्स टू कम टू योर हाउस एज वेल, एंड देन यू डोंट फील सिक्योर कि यार अगर मेरे पड़ोस वाले घर में रोज़ाना 15-20 अलग अलग किस्म के मर्द आ रहे हैं, तो वो तो ये भी सोचेगा अच्छा बराबर में ये भी फिर यही होगा। और अगर मेरी बीवी कोई सौदा लेके ऊपर आ रही है या दरवाजे पे कुछ ख़रीद रही है, तो उसकी नज़र पड़ेगी, तो बोलेगा अच्छा ये है तो फिर ये भी है। फिर इस तरह सेक्सुअल क्राइम और ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगेन इस बात पे आप किससे आर्ग्यू करेंगे इस मुल्क में, क्योंकि जगह का बड़ा मसला है। अब सी व्यू पे यहाँ मैं पल्स पे मैं जाता था जिम करने, अनटिल आई जो मेरा फुट पे प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं वहाँ ट्रेडमिल कर रहा होता था सुबह 9:30 बजे 10 बजे। यही टाइम होता है जो कॉलेज के लड़के लड़कियाँ हैं वो डेट पे आए हुए होते हैं, सी व्यू पे इधर उधर। तो एक दिन मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट द सी एंड ऑल आई सी इज़ अ कपल रनिंग, और पीछे 2 पुलिस वाले भाग रहे हैं। एंड आई फेल्ट रियली सैड। मैं ये क्या लाइफ है। अमीर जो है वो तो उसका अपना साइड में पूरा अपार्टमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बड़े अपार्टमेंट है कराची में जो कि अमीर लोगों ने साइड होज के लिए रखे हुए हैं। तो उसको तो ये पहुँच नहीं, पुलिस भी नहीं पहुँच सकती उन गेटेड कम्युनिटीज़ में, राइट। अब गरीब है, गरीब के पास मसला कुछ नहीं, उसने बेचारे ने समंदर पे ही बैठ के प्यार की 4 बातें करनी है, उसके पीछे वो भाग रहे संतरी।
और फिर वही होता है, निकाहनामा दिखाओ, वो होता नहीं है, फिर कहते हैं पैसे दो। हालांकि इस पर इतना ऑर्डर आया है, इतने पुलिस के ऑफिसर्स वीडियो बना के बोलते हैं कि अगर आपसे कोई निकाहनामा नहीं मांग सकता, आपको कोई हरास करे तो आप, लेकिन आपको ही पता है कौन जाएगा थाने, कोई भी नहीं जाता यहाँ पे। सो ये बड़ा मसला है। सो ये जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, ये जो सीनिक व्यू वाली जगह होती हैं, या कोई लेक साइड है या यहाँ है जहाँ पे डेट्स का आना होता है कि मतलब यहाँ तो आएंगे, तो यहाँ पुलिस वाले होते हैं, या फिर वही पुलिस वाले शलवार कमीज़ में आम बंदा रॉबर बन के, क्योंकि वर्दी में तो कोई किसी का रेप करेगा नहीं, राइट, अवॉइड करेंगे जी पुलिस वाले ने किया है, तो वो ऑफ ड्यूटी होते हैं या वो वर्दी में नहीं होते। एंड देन इन अ लॉट ऑफ केसेस वी हैव सीन कि अगर ये छोटे मोटे लव होटल्स भी हैं, जो सस्ती वाली जगहें हैं, वहाँ पे जो रिसेप्शन वाले वही पुलिस को बताते हैं, हाँ भाई आया हुआ है, ये इससे निकलेंगे पैसे, क्योंकि उनका काम ये होता है कि अच्छा यार ये थोड़ा सा बर्गर बच्चा लग रहा है, और ये आया भी, इसने जब चाबी रखी है तो होंडा सिटी की चाबी थी या फलानी गाड़ी की, तो उसके बाद पैसे तो होंगे, तो वो खुद ही छापा पड़वा देते हैं। एंड देन फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर इन अ लॉट ऑफ केसेस द गर्ल्स एंड अप गेटिंग रेप्ड। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं कि भाई ये सामने तो कोई आएगा ही नहीं, राइट, कोई आके थोड़ी बोलेगा जी मैं तो डेट मार रहा था, या लड़की तो नहीं बोलेगी घर वालों को कि जी मैं डेट पे गई थी तो इधर पुलिस वालों ने या फिर किसी रॉबर ने मेरे साथ ये कर लिया। दे विल स्टे क्वाइट फॉर एवर। एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस उनकी वीडियो भी बनाते हैं, फिर वो वीडियो लीक भी होती हैं, फिर वो वीडियो ब्लैक मार्केट में भी बिकती हैं, बिकॉज इस तरह के सेक्सुअल क्राइम वाली वीडियोस आपको पता है ब्लैक मार्केट में, मतलब फिर बिटकॉइंस भी ट्रेड हो रहे होते हैं। बहुत ही डार्क चीज़ है, लाइक थिंग्स कैन गो रियली रियली बैड। तो प्लीज़ डू नॉट रिस्क, अननोन टेरिटरीज में ना जाएं, गिव इट टू योर गट फीलिंग। आई नो वो कहते हैं ना कि मर्द के पास दो दिमाग होते हैं, लेकिन इनफ ब्लड सप्लाई टू हैव ओनली वन ऑपरेटिंग, या तो इधर होता है या नीचे होता है, राइट। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर डिक, फिर आपको अगर डेंजर नज़र भी आ रहे होते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं खल्ली वल्ली मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, या मैं निकल जाऊँगा, देन पीपल पे अ लॉट ऑफ प्राइस। यू वर लकी दैट यू फ्लेड। वो पीछे से दो फायर करता, क्या ही कर लेता, खुदा ना खास्ता आपको नहीं उसको लग जाता, या दोनों को लग जाता, या गाड़ी पे लग जाता, गाड़ी पंक्चर हो जाती, फिर कहाँ जाते। आई मीन यू नो बहुत सारे फक्ड अप सिनारियोज हो सकते थे। सो यू एक्टेड अपॉन, मतलब आपने भी इस तरह, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि गन के आगे भागना चाहिए, बिकॉज जो गन ताना हुआ होता है ना वो ज़्यादा डरा हुआ होता है, और वो ज़्यादातर केसेस में घबराहट में चलती है। आई डिड द सेम मिस्टेक एज वेल, बट मैं मेकआउट नहीं कर रहा था, मैं 20 सड़क पे, मैं एक शादी में, दिन की शादी में, कराची में इट्स नॉट अ कल्चर, बट हॉल सस्ते मिलते हैं तो अब लोग दिन में भी शादी कर रहे हैं। तो मैं एक जगह साइड पे खड़ा होकर, एक गंदी सी ग्राफिटी थी, मैं उसके ऊपर स्टोरी बना रहा था, जैसे इंस्टा पे मैं बनाता हूँ, और संडे की दोपहर थी, नागन चौरंगी की बात है, और ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, हु वुड हैव थॉट कौन मुझे रॉब करेगा बीच सड़क पे। बट एज आई वाज डूइंग दिस देयर वाज लाइक अ बट ऑन द विंडो, और वो खोलने की कोशिश करता, गाड़ी तो लॉक थी, और वो गालियाँ दे रहा था। और उस वक्त हाशिम वॉज इट बॉर्न, ही वॉज ऑलमोस्ट कमिंग टू दिस वर्ल्ड, 2 महीने रह गए थे उसको, 1 महीना रह गया था, और मुझे समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी भगा दी। एंड लाइक टू दिस डे आई कर्स माई सेल्फ कि मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। अगर उसे गोली चल जाती, आई वुड हैव नेवर सीन माई सन, और ही वुड हैव नेवर सीन अ फादर। एंड ओवर व्हाट, अ फकिंग फ़ोन। अब तो सारा, अब तो पहले तो इतना डेटा चला जाएगा, अब तो वो भी मसला नहीं, सब क्लाउड पे होता है। सो जस्ट फकिंग गिव योर फ़ोन, पैसे फिर आ जाएंगे, जान नहीं आती। चलो अगर ज़िंदगी बच गई, लेकिन गोली किसी ऐसी जगह लग के चली गई कि मैं मेंटली डिसेबल ज़िंदगी भर अब जिंदा लाश बना हुआ हूँ, या स्पाइनल कॉर्ड में लग गई, और आप वो बॉर्न ऑन द 4th of July विच इज़ अ वंडरफुल टॉम क्रूज मूवी, ज़रूर देखिएगा, उसके साथ ये हो गया था, स्पाइना बिफिडा क्या था, नहीं वो दैट समथिंग एल्स। सो ही गॉट अ स्पाइनल इंजरी, उसको पहले दिन ही वियतनाम वॉर में गोली लग जाती है, एंड देन he becomes an anti-war activist. It's a wonderful movie, and then nothing under his waist works, and he gets frustrated because he can't perform anything. वो बहुत अच्छी फिल्म है, he would have won an Oscar for that, he should have won an Oscar, तो वो ज़रूर देखिएगा। सो या अगर इस तरह की कोई इंजरी हो जाए फिर, देन व्हाट आर यू गोना डू। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, राइट और रॉन्ग वाली बात आगे है, पहले अंडरस्टैंड करना कि हाँ जवान बच्चे हैं, इसीलिए कहते हैं जल्दी शादी होनी चाहिए। बट हमारा सोसाइटी का बनावट ऐसी है कि कोई किसी पढ़ते हुए बच्चे को पैसे वाले ही शादी बेटी दे सकते हैं या बेटा दे सकते हैं, मगर अगर कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो तो सोच भी नहीं सकते कि चलती हुई पढ़ाई में कौन किसी को रिश्ता देता है। सो ये चीज़ अगर हो जाए तो बहुत सारे सिचुएशंस
नापैद ही हो जाए, लेकिन चूंकि हमारा वो कल्चर नहीं है और एक कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल है कि जी ग्रेजुएशन है, फिर एमबीए है, फिर नौकरी है, फिर 24 25 26, वो एज बड़ी सेंसिटिव होती है, उसमें लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। बहुत से लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं इन इन परसूट ऑफ दीज थिंग्स, या फिर ज़िंदगी भर का ऐसा दाग लगा लेते हैं, ऐसा लेबल लग जाता है कि फिर वो उससे निकल नहीं पाते। इट्स वेरी ट्रॉमेटिक। और जो बात आपने कही कि भाई मुझे अब हर बंदा रॉबर लगता है, ये तो हकीकत है। जितनी बार मैं यहाँ पे मुझ पे भी स्नैचिंग हुई है, उसके बाद या अटेम्प्ट हुई है, उसके बाद आपको हर बंदा वही लगता है, और ये एक हकीकत है। जैसे होता है ना कि कभी कभी आप कोई गलत काम करके निकले, आपको लगता है सब आपको ही देख रहे हैं, हालांकि किसी को पता भी ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस सीनिक हिल से जो भी कर रहे थे, लिप्टम जिपकी करके आप नीचे उतरते, आपको लगता कि यार जिसका मुझसे आई कांटेक्ट हो रहा है उसको पता है मैंने क्या किया है, जबकि शायद उसको ना पता हो। वो एक गिल्ट भी होता है, वो ज़रा वो आपको हिलाता है। सिमिलरली जब आपके साथ जब आप पे गन तानी हुई हो, तो आपको फिर हर बंदा लगता है कि इसके पास भी हो, किसी पास भी। एंड इट टेक्स वीक्स इफ़ नॉट मंथ्स टू गेट आउट ऑफ दिस। मुझे भी इस वाक़े के बाद जो मैं गाड़ी भगाती थी, मेरा गला खुश्क हो गया था, मुझसे सीख कबाब नहीं खाए गए। हालांकि मैं नाश्ता नहीं किया था, दोपहर की शायद मतलब वहीं जाके खाऊंगा, एक कबाब नहीं फिनिश कर सका बिकॉज अजीब तबीयत हो गई थी। सो नेवर आउट रन अ गन बिकॉज यू कैन नेवर आउट रन अ बुलेट, बट ट्राई नॉट टू पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन जहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें। वो रॉबर थे ही नहीं, वो आपकी गाड़ी लेते नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ ट्रैक हो जाती हैं, और गाड़ी जो है ना एक बहुत बड़ा गैंग होता है, वही गाड़ी चोरी करता है, जिसको पास पूरा रूट हो कि अगले दिन गाड़ी अफगानिस्तान में पहुंची हुई हो। ये छोटे मोटे स्मॉल टाइम रॉबर्स का इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लेके कोई बैंक रॉबरी करके गाड़ी वहीं छोड़ देते, दैट्स इट। उनका था या तो आपसे मोबाइल लेते, या आपकी तस्वीरें बनाते, वीडियोस बनाते, फिर आपको ब्लैकमेल करते, या आपका एटीएम खाली करते, और वर्स्ट केस सिनारियो सेक्सुअल क्राइम करते, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो रॉबर थे ही नहीं, वो रॉबर थे डिग्निटी के। ऐसे आप अपने आप को इन सिचुएशंस में ना डालें। सो दुनिया भर में भाई लव होटल्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगेन ये डिबेट यहाँ इस मुल्क की है भी नहीं, ना हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं हो सकती ये चीज़, होनी भी नहीं चाहिए, कल्चर ही नहीं है यहाँ पे। ओयो की लोग बड़ी मिसाल देते हैं, बड़े मीम्स भी आते हैं इंडिया में। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला कि जी घंटे के हिसाब से होटल मिलेंगे, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी यूथ है, उसको करना है, उनके पास जगह नहीं है। और जो 18-20 साल वाले होते हैं, उनके पास इतने फाइनेंसेस तो नहीं होते कि वो किसी 5 स्टार में जाएं या अपना घर लें, तो फिर उनके लिए ये वाली चीज़ें काम आती हैं। और ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल भी है दुनिया भर में, बिकॉज ये नीड होती है एंड व्हाटएवर। यहाँ की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा। सो यहाँ पे फिर रह दे के इस तरह की चीज़ें बचती हैं, और फिर इसमें फिर पीपल एंड अप लूजिंग देयर लाइव्स, पीपल एंड अप लूजिंग देयर डिग्निटी। सो कोशिश यही है कि भाई सब्र कर लें, और जब तक सब्र जितना कर सकते हैं करें, अपने आप को इन सिचुएशन में ना डालें। बेहतर है आप शादी कर लें, और उससे अच्छी और बात क्या होगी। मगर वही उसमें भी हर चीज़ देख के कि यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड। सिर्फ इसलिए नहीं शादी करनी कि जी सेक्स करना है, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रोवाइड, क्योंकि आपने एक फैमिली ग्रो करनी है, और ज़ाहिर है उसमें आपके भी हुकूक है। खाली औरत के हुकूक नहीं कि उसने आके आपकी खिदमत करनी, मर्द के भी हुकूक है कि उसने भी प्रोवाइड करना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इमोशनल बॉन्डिंग हो, इमोशनल अवेयरनेस हो, ये सारी चीज़ें हो। तो सब्र करें, अपने आप को इस तरह के झोंकों में ना डालें, इसमें आप बहुत बचें, सदका वदका दें। अपनी अल्लाह ने बचाया आपको, कोई नेकी वेकी काम आ गई है। बट रही बात ये कि यू आर स्टिल ट्रॉमेटाइज बाय इट, आई मीन होता है पीटीएसडी, बिल्कुल होगा, ये छोटी चीज़ नहीं थी, जान जा सकती थी। तो कोशिश करें, कंसल्ट करें, लाइक थेरेपिस्ट, दे शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट। रही बात कि आपने एसएचओ को बताया, एसएचओ को सब पता होगा, यहाँ सब पता होता है, इट्स पार्ट ऑफ द डील। तो वो छोड़ दें आप, ये कोई डिबेट ही नहीं कि जी मैंने एसएचओ को बता दिया, वो उसको सब पता होगा। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। आप एक लड़का लड़की बिठा के गाड़ियाँ भेजें इस तरह की जगहों पे, और देखिए कितने लोग आ रहे हैं, और आप जो हैं वारदात कर ले कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। मतलब जो रॉबर वॉबर बन के आ रहा है, बड़ा आसान है पकड़ना, अगर पकड़ने में है, वह नहीं करते। या बुर्का पहना के रात में आप कराची में चलाएं, किसी और उसको हाथ में आईफोन, जो लूटने आए इधर से 4 SMG के फायर आए, ख़त्म। बट नहीं करना ना, करना ही नहीं है। सो वो छोड़ दें आप। बाकी अपना ख्याल रखें, और जितने बच्चे सुन रहे हैं प्लीज़ अपने आप को रिस्क में ना डालें, जान जोखिम में ना डालें। मैं भी 21 साल का था, एक ज़माना था, और उस वक्त हर वक्त ही दिल करता था इन चीज़ों का, मगर ये कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर डिग्निटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। चीज़ें जो करनी है सही तरीके से, अपने वक्त पे, और प्रॉपर तरीके से, थ्रू प्रॉपर चैनल, ये वाले ना ही आजमाएं तो बेहतर है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है।
ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।